Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyamadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome everyone for this session. We are doing chapter 4. अध्याय 4 हम कर रहे हैं और कल की श्लोक हमने मतलब 34वां श्लोक हमने कंप्लीट किया. इसका मतलब है This means that we have entered the last section of this chapter, section 5. So, पांचवें section basically deals with Divya Gyan, transcendental knowledge. The chapter itself is called Divya Gyan, and especially this section, अभी जो 34वें श्लोक से प्रारंभ हुआ, यहाँ से अंत तक दिव्य ज्ञान का पोर्शन है, ट्रांसेंडेंटल knowledge का portion है. So yesterday we talked about the last shloka was how do we search for a spiritual master and how do we approach him. कैसे एक आध्यात्मिक गुरु को हम ढूंढे, what are the criteria, क्या criterias हैं और कैसे उनसे हम मतलब संपर्क में रहे और कैसे उनकी सेवा में हम लगे रहे. So we also learned that faith and doubt, both of them can be used spiritually. जो श्रद्धा है और जो शंका है हमारे मन में, दोनों को हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए यूज कर सकते हैं. कैसे? How is that? When we have faith, we can go and surrender to the spiritual master and then we can serve him. जब हमारे अंदर श्रद्धा है, हम गुरु के आश्रय में जा सकते हैं और उनकी सेवा हम कर सकते हैं. जब हमारे अंदर शंका है, तब हम गुरु के पास जा सकते हैं और हमारे सारे डाउट्स को उनको बोल सकते हैं. We can tell all the doubts we have, pariprashna. We can ask him questions, and once our doubts are clarified, then we can again surrender to him and do seva. So either whether we have faith, whether we have doubts, दोनों तरीके से हम गुरु के आश्रय में जा सकते हैं और परिप्रश्न कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और मानव जीवन का परिपूर्णता को हम पा सकते हैं. We can achieve the perfection of human life. So basically today seeking a guru has become a fashion. आजकल सब लोग के पास एक गुरु है, मेरे पास भी एक गुरु होना चाहिए. और आजकल हम कैसे गुरु को ढूंढते हैं? Actually what kind of guru we must seek? We must seek a guru who shows the way. हमें जो आध्यात्मिक पथ को रोशनी के साथ हमें दिखा सके, हमें लीड कर सके, ऐसे गुरु के मतलब ऐसे गुरु की खोज हमें करना चाहिए. लेकिन आजकल के फैशन क्या है? हम वो गुरु को मतलब सरेंडर कर बैठते हैं जो हमारे सारे गतिविधियों को सैंक्शन करते हैं. मतलब जो गुरु ये बोलता है कि कि आप मांस भी खा सकते हो, मद्यपान भी कर सकते हो, बस 5 मिनट भगवान की पूजा करो, मैं जो बोलता हूँ वो करो, सब कुछ हो जाएगा. तो ये मतलब this is the kind of guru many people want. Who is telling them that you can do anything you want. 5 मिनट 10 मिनट पूजा कर लो, फिर बाकी दिन आप काम काज में करो, व्यस्त रहो, be engaged in your work, household work. But this is not the real kind of guru.
The real kind of guru is one who's going to call spade a spade. वो मतलब जो चीज है वो है बोल रहे, और जो चीज नहीं करना है उसको वो मना करते हैं। जो हमें कृष्ण की ओर लेके जा सकते हैं वही आध्यात्मिक गुरु है। द बॉटम लाइन ऑफ इट, दैट पर्सन हु कैन टेक यू टू कृष्ण and keep you engaged in his service, that is a guru. इसको हम गुरु बोल सकते हैं। So our connection with Krishna is reinforced, not restricted by guru. तो बहुत और लोग होते हैं जो सोचते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हमारे और कृष्णा का संबंध ही तो है, इट इज बिटवीन मी एंड कृष्णा, तो बीच में किसी और को ले आने की जरूरत क्या है? Why should somebody come in between? That's not how it works. Guru is not a restriction. Guru is one who is going to facilitate your journey. वो आपकी जर्नी को आसान कर देंगे, आपकी जर्नी को वो फुल प्रूफ फेल प्रूफ कर देंगे। He is the one who is going to make your journey towards Krishna full proof and fail proof. So the point of scriptural study is not to prove our own points. जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हम अपना ही मतलब निकालना प्रारंभ करेंगे। That is not why we should read Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, we should read to find out what is the meaning Krishna is giving, what is the meaning Guru is giving, and how we must mold our lives accordingly. कैसे हम अपने जीवन को उस और मतलब मोड़े जिस और कृष्ण और आध्यात्मिक गुरुओं में लेके जा रहे हैं, ना ही बल्कि कि मुझे इस तरह जाना है तो मैं सारे भगवद गीता का वही श्लोक ले लूंगा जो मतलब ये मतलब की चीज है। I will reject things which are not appealing to me and I accept only those things that are appealing to me. This is not the way we read Bhagavad Gita or accept a spiritual master. So, क्यों पढ़ना चाहिए शास्त्र? To improve our viewpoint, not to endorse our viewpoint, to improve our viewpoint. हमारी दृष्टि मतलब जो अभी भौतिक दृष्टि है उसको दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाने वाला दृष्टि हमें चाहिए, और ऐसे दृष्टि का दान वरदान केवल गुरु दे सकते हैं। Only Guru can enlighten us, open our eyes for the spiritual truths and not endorse our material requirements. And Guru is never going to be impractical. वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आ जाओ और आध्यात्मिक जिंदगी में पूर्ण तरीके से लग जाओ। गुरु भी आप किसी को ऐसे नहीं बोलते, because Guru knows it's a long way to go for all of us. तो वो उसी को निमंत्रण देते हैं जो उसकी क्षमता रखते हैं। So Guru knows 4 ways of engaging a person. प्राणैर अर्थैर दिया वाचा, ये बार बार मैं बोलता हूँ। So Guru knows इनको इस वक्त कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। In the same house, their husband may be there, wife may be there. Both of them have 2 different tendencies. तो husband को कोई और सेवा मिल गया, गुरु ने सेवा दे दिया, पत्नी को कोई और सेवा दे दिया। So Guru knows किसको क्या सेवा देना चाहिए उनके मनोबल के हिसाब से, क्योंकि इसको ये सेवा देंगे और इसको ये सेवा देंगे तो ये कर नहीं पाएंगे इस वक्त। हमें उस स्तर पे पहुंचना है। We should all come to that position where any seva given by the Guru, we can do it. That is the acumen and ability, aptitude we must have, we must cultivate. और धीरे धीरे वो स्तर भी आएगा जब कोई भी सेवा गुरु हमें बोलेंगे हम मतलब उतनी ही इंटरेस्ट से करेंगे जो बाकी हम सेवा करते थे जिसमें हमारा इंटरेस्ट था। So inquisitiveness must be with submissiveness. तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि इंक्वायरी करना चाहिए लेकिन with the mood of submissiveness. गुरु के शरण में जाके उनको मतलब with great उनको आदर करके उनसे हम उत्तर का खोज करना चाहिए, ना कि we are going to question him, we are going to reject his opinions. This is not the way where we can approach a spiritual master. So getting his grace by humbleness, his grace, HIS, humbleness, inquisitiveness and service. Pranipata Pariprashna Sevaya. So
प्रणिपाता तभी कर सकते हैं जब हम हम्बल हो, जब हम शरणागत हो सकते हैं, तभी हम प्रणिपात कर सकते हैं। अहम है, अहंकार है, तो हम कभी भी दंडवत नहीं लगा सकते। इंक्विजिटिवनेस, परिप्रश्न, जानकारी जानने का जो रुचि है वो होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, राधा रानी कौन है, वृंदावन क्या है, कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, क्यों भक्तों के संग में रहना चाहिए। So these are the things that inquisitiveness should be there. And finally, service, sevaya. Krishna खुद बोल रहे हैं, प्रणिपात परिप्रश्न सेवया. With these three qualities, we must surrender to the spiritual master. So today we will go ahead with shloka number 35. So in this shloka, what we are going to learn, I'll just start with this particular shloka. तो इस श्लोक में हम क्या सीख रहे हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स आर बट ए पार्ट ऑफ कृष्णा. सारे जीव जंतु कृष्णा का अंग का विभाग है, मतलब कृष्णा का अंग में ही वो सब है. वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. So firstly, let's today read the translation and then read the shloka. And when Krishna बोल रहे हैं अर्जुना को, Krishna is telling Arjuna, and when you have learned this, thus learned the truth, और जब आप इस सत्य को जानेंगे, you will know that all living beings are but part of me. तब आप जान पाएंगे कि सारे जीव जंतु मेरे ही अंग के भाग हैं. And that they are in me, और वो सब मेरे अंदर है. And are mine, और वो सब मेरे ही हैं. देखिए, जब हम ये समझ हमारे अंदर आ जाएगा कि सारे जीव जंतु कृष्णा का ही है, कृष्णा का अंग के मतलब अलग अलग हिस्से हैं, मतलब हम सब एक हैं, तो कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी युद्ध नहीं होगा. लड़ाई और युद्ध क्यों होता है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं. हम सब कृष्णा का ही है और कृष्णा का अविभाज्य अंग है. हम we are all belonging to Krishna and we are all part and parcel of Krishna. So when I know that the other person, other living entity is also part of Krishna, then I will not harm that living entity. Yeah, it can be anything, a goat, a snake, a cow, another human being, an insect. We will not voluntarily harm it when we come to know that they all belong to Krishna and they are Krishna's. मैं भी कृष्णा का हूँ, ये भी कृष्णा का है. जब ये ज्ञान हमें आ जाएगा तो कभी युद्ध नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगा. घर में भी अशांति का वातावरण इसी वजह से होता है. मैं और मैं ये सोचना चाहिए कि हम सब कृष्णा का ही हैं और हम सब कृष्णा के सेवक हैं और हम सब कृष्णा का अंग के अलग अलग हिस्से हैं. तो ये सोच के हम घर गृहस्थी करेंगे या इवन नेशनैलिटी and worldly duties, the worldly relationships, when we go through, there can never be fights. ज्यादातर लड़ाई घर में और युद्ध भौतिक स्तर में इसलिए होता है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि we belong to Krishna, we all belong to Krishna, and our only duty is to serve Krishna. So Krishna is telling in this shloka, yad natvana punarmoham एवं यास्यसि पांडव एन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतोमहि. येन भूतानि अशेषानि, ये सारे जीव जंतु, द्रक्ष्यसि आत्मनि अतोमहि, मेरे ही है ये सब. ये जानने के बाद यद्नात्वन पुनर्मोहम, तो कभी हम मोह के शिकार नहीं हो जाएंगे. एवं यास्यसि पांडव, यही सीखेंगे. So the result of receiving knowledge from a self-realized soul and one who knows things as they are is learning that all living beings are part and parcels of the Supreme Lord. तो आध्यात्मिक ज्ञान का पहला पहलू ही है ये जानना कि सब कुछ कृष्णा का है. Everything belongs to Krishna. Everything is Krishna's. So that is the first stage. The sense of separated existence from Krishna is called Maya. तो माया क्या है? जब हमें एहसास होता है कि मैं और कृष्णा अलग हैं,
या मुझे एहसास करवाती है कि मैं और कृष्ण अलग है, ये माया है। माया मतलब नॉट दिस, ये नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं कृष्णा का नहीं हूं, मैं अलग सा जीव हूं। So something that we have nothing to do with Krishna, that Krishna is only a great historical personality and that the absolute truth is impersonal Brahman. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा और कृष्ण के मतलब बीच में कुछ नहीं है। और हाँ, एक महान व्यक्ति था द्वापर युग में कृष्ण, ऐसे भी सोचते हैं। और जो भगवान है वो निराकार है, उसका आकार ही नहीं हो सकता, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। Actually, as it is stated in Bhagavad Gita, the impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये भगवान का अंग का प्रकाश है। So that is not all in all. ये सब कुछ नहीं होता है, मतलब प्रकाश ही सब कुछ नहीं होता है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कौन उसका स्रोत है, ये भी जानने की जरूरत है। You must not only be thankful to the light, you must also be thankful to the source. And Krishna is the source of all the things that we have in our lives. So, and Krishna is the cause of everything. Krishna, Sarva Karana Karanam, he is sanctioner of, he is the witness of everything. Anumanta Upadrushta. और वो सब कुछ, मतलब सबका साक्षी है, सबका अनुमति देने वाले हैं, वो सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। In the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna is the supreme person of Godhead, the cause of all causes, Sarva Karana Karanam. Even the millions of incarnations are only his different expansions. तो जो अनेक अनेक अवतार है वो उन्हीं का अवतार है। Similarly, the living entities are also expansions of Krishna. तो हम जीव जंतु भी कृष्णा का ही बोल सकते हैं, एक अवतार है, एक अंग है। मायावादी फिलहाल हम कृष्णा नहीं है, अवतार बोल दिया, अच्छा प्रभु ने बोल दिया अवतार है, हम भी कृष्णा है। नो, वी आर नॉट कृष्णा, वी आर कृष्णास, वी बिलोंग टू कृष्णा। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses its own separate existence in his many expansions. जब कृष्णा अलग अलग अवतार में आते हैं तो वो क्षीण होते जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं, 1 - 1 = 0 हो जाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। कृष्णा का मैथमेटिक्स यही है। कृष्णा से कुछ, कृष्णा का इक्विवेलेंट भी कुछ चला गया, फिर कृष्णा कृष्णा ही रहेगा, वो आधा कृष्णा नहीं हो जाएगा। और कृष्णा का एक अवतार उसके अंदर आ जाएंगे वापस, तो कृष्णा और शक्तिशाली हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्णा इज ऑल पावरफुल। 1 - 1 = 0, नो, 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। कुछ भी उसके अवतार चले जाए फिर भी वो कृष्णा ही है, कुछ अवतार पूर्ण करके उसके अंदर आए फिर भी वो कृष्णा ही है। So this thought is material in nature, and we have experience in the material world that a thing when fragmentally distributed loses its own original identity. हम तो मतलब हमारे बुद्धि से सारा हिसाब किताब करते हैं, हमें भी सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में 1 - 1 = 0। भौतिक जगत के लिए सही है, लेकिन कृष्णा के लिए, कृष्णा के बारे में जब हम बात करेंगे 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। So this is the case in the absolute world. For want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion. क्योंकि हमारे ज्ञान ढक चुका है मोह और माया से, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। And therefore we think that we are separate from Krishna. तो हम यही सोचते हैं हम और कृष्णा अलग है। Although we are separated parts of Krishna, but nevertheless not different from him. हम कृष्णा के separated entities है, but we are always belonging to Krishna. और कृष्णा और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है मतलब कृष्णा हमसे दूर नहीं है, ऐसा नहीं। अंतर नहीं है मतलब मैं भी कृष्णा जैसे हूँ। क्वालिटेटिवली यू आर कृष्णा, क्वांटिटेटिवली यू आर नॉट। सागर के आप एक बूंद हो, क्वालिटेटिवली सागर की तरह हो, लेकिन आप सागर नहीं हो, आप सागर का एक बूंद हो। Although we are separated parts of Krishna, we are nevertheless not different from him. The bodily difference of the living entities is Maya. तो हम ये सोचना कि ये अलग है, ये इस जाति का है, ये
मतलब कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है। हमें ये सोचना चाहिए जो भी है आत्मा है, आत्मा कृष्णा का पार्ट है, और आत्मा कृष्णा का है। कृष्ण और भौतिक जो देह है वो भी कृष्णा ने दिया है। सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीथिंग। The bodily different of the living entities is Maya, but not actual fact. They're all meant to satisfy Krishna. हम सबका ध्येय क्या है? कृष्ण को तृप्ति दिलाना। By Maya alone, Arjuna thought that the temporary bodily relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. तो युद्ध भूमि में अर्जुन मोहित हो जाता है अपने ही लोगों को देख के, तो ये माया है। बोल जाता है कृष्ण ने इस युद्ध को मतलब निरूपित किया है सब कुछ, मतलब सारे ऑप्शंस को गंवाने के बाद, तो मुझे कृष्ण की सेवा करना है, और कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध लड़ूं तो मुझे लड़ना है। The whole teaching of Gita is targeted towards this end. कृष्ण गीता का बोधन यही है। फाइनली गीता का अंत में क्या बोधन है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. So what is the thing that Krishna is asking us to do? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. मेरे शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ. So the living entities are separate part and parcels of Supreme, have a purpose to fulfill. क्या है purpose? To serve Krishna. Having forgotten that purpose since time immemorial, they are situated in different bodies. ये भूल गए, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, पाशाते माया झपटी अधरे. कृष्ण को जब हम भूल जाएंगे, माया तुरंत आ जाती है. पाशाते माया झपटी अधरे, आपको कृष्ण से दूर लेके चली जाएगी माया. कब कृष्ण से दूर होंगे हम? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, जब हमारी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सिर्फ हम सोचेंगे, हम कृष्ण को भूल जाएंगे. But when one is engaged in transcendental service to Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. तो जब कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, ये जो माया है हमसे दूर चला जाएगा. तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे क्या प्रभु हर हफ्ते सेवा करो बोलते रहते हैं, ये सेवा के लिए बुलाते हैं, वो सेवा के लिए बुलाते हैं. सेवा किस लिए कर रहे हो? मेरा सेवा थोड़ी कर रहे हो आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हो. प्रभुपाद जी का सेवा करो, उसको करने से क्या होगा? माया हमसे दूर चली जाएगी, माया अपने कब्जे से हमको छोड़ देगी, कृष्ण के पास हम तुरंत पहुंच जाएंगे. ये सेवा करने के मतलब नीड है. दिस इज द नीड फॉर डूइंग सेवा. दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज कॉलिंग पीपल, प्लीज कम एंड डू सर्विस टू द लॉर्ड. आप घर में भी सेवा कर सकते हो, मंदिर में सेवा करना और भी उचित है, घर में सेवा करना चाहिए. मंदिर में देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Perfect knowledge is that the Supreme Soul Krishna is the supreme shelter of all living entities, and giving up such shelter, the living entities are deluded by material energy. मैं आज अगर जिंदगी में दुख पा रहा हूँ, कठिनाई पा रहा हूँ, इसका मतलब यही है मैं कृष्ण से दूर हूँ. Because when we are with the sun, then there is no question of darkness. तो जब मैं कृष्ण के साथ हूँ, कृष्ण की सेवा में मेरा मन लगा के मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये जो दुख दारिद्र तापत्रय जो है वो सब हमसे दूर चले जाएंगे. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं तो क्यों बहुत सारे लोग सेवा भी कर रहे हैं लेकिन उनके जिंदगी में तो दुख है. In their lives we can see that they are not happy, they are always struggling, they are going through so much pain. That is because they are not fully Krishna conscious now. अभी वो पूर्ण तरीके से परिपूर्णता कृष्ण भावनामृत में नहीं पाए हैं, और जब जिस दिन पा जाएंगे मोक्ष के हकदार हो जाएंगे, तो दुख दारिद्र्य तापत्रय कुछ नहीं रहेगा. So very fact that we are suffering, हम तापत्रय उन्मूल मतलब हमारी जिंदगी में है, इसका मतलब है मैं कृष्णा से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर मुझे जाना है, इसलिए मुझे लगातार सेवा करना है. कृष्णा भी बोल रहे हैं कि 24 hours do service to me. So he is not telling 5 मिनट 10 मिनट सेवा करो. He is telling always do सेवा to me. जितना हो सके उतना सेवा करो, वो आपके हित में है.
So in Bhagavatam it is confirmed, मुक्तिर्हित्यान यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थितिः. इसका मतलब है लिबरेशन मीन्स टू बी सिचुएटेड इन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. मोक्ष का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरीके से स्थित हो जाना. उससे क्या होगा? मतलब उसका मतलब क्या है? एज एटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा. जब मैं ये जान लेता हूं कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये जब मैं जान लेता हूं मैं मोक्ष प्राप्त कर चुका हूं. तब मुझे कोई भी उलझन, दारिद्र, तापत्रय मेरे जिंदगी में नहीं आएगा. आएगा भी तो मुझे वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा. वो आएगा जाएगा. इट विल नॉट अफेक्ट अस. सो दिस इज द shloka that is enlightening us about how all the living entities are part and parcels of Krishna. And when we know this, then many problems in our lives are solved. We'll go ahead with shloka number 36. So in this shloka, Krishna is talking about when one is in the boat of transcendental knowledge, क्या होता है जब कोई ज्ञान के नाव में बैठा है तो उसका क्या होता है. So let me read the translation first. Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम. इतना पापी हो मतलब पूछो मत, उतना पापी हो आप. ऐसे भी हो तो भी, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, लेकिन आप भगवत गीता का ज्ञान आपके अंदर है या ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, तो इस ज्ञान के नाव में जब आप बैठे हो क्या होता है? क्योंकि आप अभी भगवत गीता सुन रहे हो, आप उस ज्ञान के नाव में बैठे हो, तो मान लीजिए आप सबसे बड़ा पापी हो, फिर भी आपका क्या होगा? कृष्ण बता रहे हैं क्या होगा. You will be able to cross over the ocean of miseries. वृजिनम संतरिष्यसि. इसका मतलब है इस भौतिक जगत जो सागर की तरह है, भौतिक सागर को आप पार कर देंगे केवल ज्ञान के नाव में बैठने से. हाँ, आप सबसे बड़ा पापी हो, फिर भी ज्ञान के नाव में क्योंकि आप बैठे हो, आप इस भौतिक जगत को पार कर देंगे. अच्छा, तो ये बात है. तो प्रभु जी, तो आप हमें क्यों बोलते हो पाप मत करो? करने दीजिए ना. तो जब मेरे पास भगवत गीता का ज्ञान है, मैं रोज पढ़ूंगा भगवत गीता, लेकिन मुझे पाप करने दीजिए. रोज भगवत गीता पढ़ रहे हो, उसका तुम्हें प्लस पॉइंट मिलेगा क्योंकि तुम रोज पाप कर रहे हो. बिकॉज यू आर गोइंग टू सिन एवरी डे. आपका ज्ञान ढक जाएगा, माया आके उसको कवर कर देगी. So you will not lose the knowledge, your knowledge will be covered. मतलब आपको दिखेगा नहीं, मतलब पर्दा आ जाएगा. तो जब पर्दा आ जाएगा फिर आप ढूंढते रह जाओगे, फिर आप भटक जाओगे. That is why we are not supposed to do sins. We are not supposed to take advantage of the fact that Krishna is telling, even simply by knowing this knowledge, you will come to me. तो मुझे जैसे चाहे वैसे जिंदगी बिताने दीजिए. No, that is not the way it works. So, अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. So, we'll read the purport. Proper understanding of one's constitutional position in relation to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence. केवल कृष्णा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष हमारे पैरों में आके वो गिड़गिड़ाएगी, मुझे अपना लो. ये आचार्य लोग बोलते हैं. मोक्ष आपसे आके विनती करेगी, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो. And this material world is sometimes regarded as an ocean of naissance. तो इस भौतिक जगत को एक अंधकार का अविद्या का सागर बोलते हैं. And sometimes as a blazing forest. और कुछ आचार्य बोलते हैं ये एक दावानल अग्नि है जो कभी बुझता नहीं है, जलता ही जाएगा और हमें भी जला देगा. So in the ocean, however, expert swimmer बनने भी, तो सागर में आप जितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, कितना देर रहोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कभी ना कभी आप थक जाएंगे, आपको
लैंड की तरफ जाना ही पड़ेगा और भूमि के ऊपर आना पड़ेगा। तो आपका असली व्यक्तित्व आप भूमि में रहने वाले, भूमि के ऊपर रहने वाले। तो सागर में जब हम फंस जाते हैं, यू आर द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड, हाउ लॉन्ग कैन ही स्विम, हाउ लॉन्ग कैन ही स्टे। तो भौतिक जगत में कितना भी हम फड़फड़ाए, ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इतना पैसा मुझे इनहेरिटेंस मिल गया, इतना पैसा मैंने कमा लिया, फिर भी आप सागर के अंदर ही हो। तो सागर में रह गए तो एक ना एक दिन डूबना ही है, ये हमें याद रखना है। या फिर दावानाल में फंसे हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो जल के राख हो जाएंगे। सो इफ even if someone comes forward and but इस भौतिक सागर में जो फंसा है, तो उसके लिए फिर what is the relief, उसका मुक्ति कैसे मिलेगा? जब कोई आके उसको उस सागर से उठाएगा, तब उसको मतलब जीवन दान मिल गया। So if someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, is the greatest savior. तो कोई आके ऐसा मदद करेगा, कोई नाव लेके आएगा और उसको आपको रेस्क्यू कर देगा, मतलब कितना आप उसको आभारी रहेंगे। तो ये रोल स्पिरिचुअल मास्टर प्ले कर रहे हैं। दिस द रोल स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लेइंग। ही हैज कम विद द बोट ऑफ नॉलेज, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। त्वं न संदर्शितो धात्र दुस्तरम निष्ठितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारैवार्णवम्। तो इस कलियुग सत्वहरम पुंसाम, मनुष्य का सद्बुद्धि लेके जा चुका है इस कलियुग, कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारैवार्णवम्। तो आप आधार हो, कर्ण से सुनने से, आपके प्रवचन सुनने से, आपके बताए हुए मार्ग में जाने से, तो कर्णधारैवार्णवम्, तो मुझे रिलीफ मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। तो तुम ना संदर्शितो दातो, हे प्रभुपाद, हे गुरु, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो तुम ना संदर्शित दात्रा दुस्तरम निष्ठितीर्षताम, मैं फंसा हुआ था इस भौतिक जगत में, आपके आने से मुझे अभी मोक्ष का द्वार दिखाई दे रहा है और एक ना एक दिन मैं उसको पार कर दूंगा। सो द बोट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सबलाइम। तो ये जो नाव है कृष्ण भावनामृत का, इससे नीचे नहीं उतरना है। आप सब लोग इस नाव में चढ़ चुके हो, भौतिक जिंदगी को हम पार करते हुए जा रहे, इससे अब नीचे नहीं उतरना है। मूर्खता होगा जब हम कोई इससे नीचे उतरने का सोचेगा भी। सो एंड आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज फूलिश टू गेट डाउन इनटू द ओशन व्हिच इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड शार्क्स। तो अनेक अनेक माया का स्कीम्स है, वो हमें कच्चा चबा देगी। So we'll go and do one more shloka quickly. It's a short one. So the shloka is yataidhamsi samnidho agnir bhasmasat kurute arjuna nanagni sarva karmani bhasmasat kurute tata। तो क्या है इस श्लोक का अर्थ? So the shloka is talking about the fire of knowledge. तो भौतिक जगत भी एक अग्नि है, दूसरा एक अग्नि है ज्ञान का अग्नि। तो ज्ञान अग्नि से क्या होगा हम पढ़ेंगे। As the blazing fire turns firewood to ashes, यथै दामसी समिदोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना। जैसे एक अग्नि लकड़ी को जला के राख कर देगी, ठीक वैसे ही so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities। ठीक वैसे ही नानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो ज्ञान का अग्नि भी हमारे सारे कर्म को जला देगी, कर्म को मिटा देगी, भस्म कर देगी, कुरुते तथा। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि कर्माणि निर्दहति, कर्म को जलाया नहीं जा सकता, भुगतना ही पड़ेगा। किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसका कर्म तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण उनके जीवन में है। सो सारे कर्म मिट जाएंगे, सारे पाप कर्म पुण्य कर्म मिट जाएंगे जब कृष्ण हमारे साथ है और हम कृष्ण के साथ हैं। So the perfect knowledge of self and super self and of the relationship is compared to here in the fire। तो ये चौथा चैप्टर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज,
ये आग की तरह है, हमारे कर्मों को मिटा देगा सिर्फ जानने से। ओके, एंड देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शन इन द मेकिंग। तो रिएक्शंस भी कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो अभी तक हमारी जिंदगी में नहीं आया, जो सीड के रूप में है, अभी वो फल नहीं, उसका वो पाप का फल अभी हमारी जिंदगी में नहीं आया। ये बीज भी जल जाएगा, जब बीज जल जाता है उससे अंकुर नहीं निकलता है। सो रिएक्शन इन द मेकिंग, तो जो आप जिंदगी में भुगत रहे हो, रिएक्शन इन द मेकिंग। और दूसरी तरीका क्या है, रिएक्शन फ्रुक्टिफाइंग, अभी फल, पाप का फल अभी आपकी जिंदगी में नहीं आया, आने वाला है। और रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड, जो ऑलरेडी हम भुगत चुके हैं, बहुत सारे बीमारियां ये वो आके हमारी जिंदगी में कठिनाई आके आके चला गया, तो ये एक तरीके का है। एंड रिएक्शन है प्रायोरी, और जन्म जन्मांतर से जो हम जो इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और जो जन्म जन्मांतर इस दुनिया में रह जाएंगे अगर तुरंत हम कृष्ण भावनामृत के नाव में चढ़ के इस भौतिक जगत को पार नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे, तो और पाप रिएक्शंस आते जाएंगे। The knowledge of constitutional position of living entity burns everything to ashes. तो केवल कृष्ण के बारे में पढ़ने से, सुनने से, पढ़ने से ज्यादा सुनने से, इसलिए हम बोलते हैं बुक तो आपके पास है लेकिन आप सुनो, भक्तों के माध्यम से गुरु के प्रवचन को सुनो। Because when we hear, hearing is a very powerful tool. It is the foremost tool to burn down all the karmic reactions that we have got. So when we read Bhagavad Gita, it is also like hearing Prabhupada. जब आप जोर से पढ़ेंगे, ऐसा है कि प्रभुपाद जी आपके पास बैठ के सुना रहे हैं। That's why we say read Prabhupada books, hear to lectures of devotees and Prabhupada. So in the Vedas it is stated, Ubhe Uhai Vaisha Ete Tarati Amrita Sadva Asadhuni. One overcomes both pious and impious interactions of birth. पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को पार करके चले जाएंगे। तो those who have joined us late in the sense we're doing almost the 66th session, और जो आजकल जुड़े हैं हमसे, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आप क्या बोल रहे हो, पुण्य कर्म को भी गंवाना है? जी बिल्कुल, क्योंकि पुण्य जब तक आपके पास है इस भौतिक जगत में आपको वापस आना है। You have to come back into this material world to enjoy the fruits of your good activities. तो क्या हमें गुड एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन अकर्मा, मतलब कृष्ण के मार्गदर्शन से जब हम करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन से। जब मैं अपने हिसाब से जेब से उठा के किसी को दान दे दिया, गुरु के आदेश से मैंने दान दे दिया, दोनों अलग अलग है। गुरु के आदेश से दान दे दिया वो अकर्म है। भक्त ने बोल दिया फेस्टिवल आ रहा है आप कंट्रीब्यूट कीजिए, दिस इज अकर्मा। कभी इसका पुण्य, भौतिक पुण्य नहीं रहेगा, आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा आपको। You will have spiritual credits. So we are always wanting you to get into these spiritual credits. So thank you very much for joining me today. We will all take leave. Either tomorrow or day after, we will have another Bhagavad Gita session. And in between one of these days, I will be doing the Sevaka session for the people who missed the last week. Not who missed, I